my name is Tevez Askin from 7th class. As we enjoy these rules today teachers motivate and inspire rules today. Work hard. Thank you. Sadia, PT teacher, Sadia. Good afternoon to everyone. Today we celebrate Self-Government Day. Students are teachers are like our second parents. Thank you. Faria, Personal Assistant Collector, Faria. नहीं है. Alfia Begum, English. Good afternoon, everyone. I am incredibly grateful for the opportunity to be here today and participate in Self-Government Day. Thank you for giving me the chance to learn and be a part of this important event. Thank you. Alisha, Hindi teacher, Alisha. Nafia. Good afternoon, everyone. I am grateful for the opportunity to be here. Thank you for giving me the chance to learn and grow on this Self-Government Day. Thank you. Nafia, Maths teacher. Good afternoon. Thank you for the chance to be here today. I am grateful opportunity to learn about self-government and the importance of civic engagement. I appreciate all of you. Thank you. Asma Begum, EVS teacher. Good afternoon, everyone. I am so thankful for the chance to be a part of this day. It's a great opportunity to learn about Government Day. Thank you. Aziza Mahin. Good afternoon, everyone. I am very happy to be here. Excited. For this opportunity, I am excited to learn about self-government and how we can all make difficulties. Thank you. Noorjahan Begum, Telugu teacher. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I am truly thankful for this opportunity. It's an honor to be a part of Self-Government Day. Thank you. Rida Arshin. Good afternoon, everyone. I am grateful for the opportunity to be had. Thank you to the teachers, staff, and everyone. Stay successful. Thank you. Zoya Begum.
Good afternoon, everyone. I want to say a big thank you for this incredible opportunity. I am excited to be here and learn about the importance of self-government. Thank you all for your support. Thank you. बहुत खूब। आप लोगों ने जिस तरीके से असातिज़ा का किरदार और कलेक्टर, एमईओ और दीगर ओहदों पर अपना किरदार अदा किया है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितनी मशक्क़त होती है ये किरदार निभाने में और इस पोस्ट पे अपना खिदमत अंजाम देने में। ये मकसद इसी का है कि आप लोगों को मालूम हो कि कमेटी किस तरीके से काम कर रही है और यहाँ पर असातिज़ा किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग जो है ना अपनी तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। बग़ैर तालीम के तरक्की हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। इंतज़ामी कमेटी यहाँ पर जो सहूलियात आपको दे रही है, आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए अपनी तालीम पे तवज्जो दें और आपके असातिज़ा आपकी जो रहनुमाई कर रहे हैं उसका भी सही भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए अपनी तालीम पे तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मेहमान पुरुषोत्तम रेड्डी साहब जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और राष्ट्रपति अवार्ड भी उनको मिला है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। पुरुषोत्तम रेड्डी साहब, रिटायर्ड हेडमास्टर। ఈ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఉత్సవానికి అధ్యక్ష వహించినటువంటి పాఠశాల స్కూల్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్బాల్ చౌదరి గారు మరియు మాజీ ప్రెసిడెంట్ షేక్ మీరా చౌదరి గారు మరియు ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, టీచర్స్కు నమస్కారాలు. చిన్నారులకు ఈరోజు సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్లో పాల్గొన్నటువంటి చిన్నారులందరికీ ఆశీస్సులు. సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ మీన్స్ మనను మనం పరిపాలించుకుందాం, మనను మనం సంస్కరించుకుందాం, మన భవిష్యత్తును మనం నిర్మించుకుందాం. దానికి ఒక రియాలిటీగా ఒక టీచర్ ప్రతిరోజు ఏ విధంగా తన బాధ్యత నిర్వహిస్తుండో, మరి ఆ టీచర్కి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలనడానికి ఒక్కరోజు మీరు టీచర్గా, ఒక డిఓగా, ఒక హెడ్ మాస్టర్గా మీరు ఉంటే ఒక్కరోజు పాఠం చెప్పడానికి మీరు నిన్న ఎంత శ్రమించారు అనేది తెలుసుకోవడానికి, ఆ విధంగా తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమిటంటే రోజు మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి టీచర్లకు మనం ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి. జీవితంలో ఇవాళ మీరు టీచర్గా, డిఓగా, కలెక్టర్గా ఒకరోజు బాధ్యత వహించారు. మనము ఏ బాధ్యతలో ఉన్నా కానీ, ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించాలి. విద్యార్థి దశలో ఉంటే రోజు చక్కగా క్లాస్కి రావాలి, పరిశుభ్రంగా ఉండాలి, బాగా రీడింగ్ చేయాలి, టీచర్ చెప్పినటువంటిది వినాలి. మన టీచర్ మన తోటి స్టూడెంట్స్తోనే కలిమిడితో ఉండాలి. కలిమిడితో ఉండటం వల్ల మన మైండ్ షార్ప్గా ఉంటుంది. మనం టీచర్ చెప్పేటువంటిది కూడా మనం వింటాము, అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. క్లాస్లో డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకరినొకరు సోదర భావంతో చూస్తూ మంచి భవిష్యత్తును చేయాలి. అయితే కొఠారి కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టుగా మన దేశ నిర్మాణము తరగతి గదిలో నిర్మింపబడుతుంది. దేశ యొక్క భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉన్నది. మొక్కై ముంగని వానది వంగది. కాబట్టి మీరు ఈ చిన్న వయసులోనే మంచి క్రమశిక్షణతో, తర్వాత సద్బుద్ధితో చక్కగా చదువుకుంటే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇవాళ మీరు అక్కడ ఉండి ఇవాళ ఒక రోజున సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ రోజున వివిధ పాత్రను పోషించారు. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు విద్యార్థి దశలో ఉన్నవారు మనం ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి.
గొప్పగా చదవాలి. ఇవాళ భారతదేశంలో రెండు ధనవంతులు బీదవాళ్ళు ఎలానో చదువుకున్న వాళ్ళు నిరక్షరాస్యులు రెండే విధాలుగా. కాబట్టి మన బీదరికము కావాలన్నా సంపన్నం కావాలన్నా మన స్థాయి గొప్పగా ఉండాలా అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్నది. మీరు బాగా చదువుకుంటే ఉన్న స్థాయికి వచ్చేస్తే చదువుతోనే మనం రాణిస్తాము, చదువుతోనే అన్ని రుగ్మతులు పోతాయి. స్టడీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు రీచ్ అవర్ గోల్. వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్ వీ కాంట్ లివ్, వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్, వీ కాంట్ మూవ్. కాబట్టి మన ఈ పాఠశాల ఒకప్పుడు ఉర్దూ మీడియం ఉండే, ఉర్దూ మీడియం ఉంటే ఇక్కడ వరకే పరిమితం. ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ప్రపంచం మొత్తము మనం తిరగవచ్చు, ప్రపంచం యొక్క అవకాశాలన్నిటి కూడా మనము చేతులను సంపాదించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ని ఎవరైతే బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారో, ఎవరైతే బాగా గ్రిప్ సంపాదిస్తారో వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ క్రమంలోనే మన ఈ కమిటీ ఇంగ్లీష్ మీడియం చేస్తే మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఆ విధంగా చేసినటువంటి ఈ యాజమాన్యానికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. మీ భవిష్యత్తు కోసం ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పారు, మీ భవిష్యత్తు కోసం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్థాపించారు. కాబట్టి బాగా చదువుకోవాలి. మీరు బాగా చదువుకుంటేనే మీరు మంచి స్థాయికి పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఇక్కడ కూర్చోవాలంటే బాగా చదువుకొని ఇక్కడ గెస్ట్గా రావాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఇక్కడ గెస్ట్గా వస్తే దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. లైఫ్ ఈజ్ ఛాలెంజ్, లైఫ్ ఈజ్ స్ట్రగుల్. వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్ వీ కాంట్, నో చాయిసెస్, నో జాబ్స్, నో రెస్పెక్ట్. రెస్పెక్ట్ ఇవ్వబడాలన్నా, సమాజంలో గౌరవింపబడాలన్నా, మంచి స్థాయికి రావాలన్నా ఏం చేయాలి చెప్పండి? స్టడీ, ఎడ్యుకేషన్ అనండి, ఎడ్యుకేషన్ అనండి. ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే మనం గౌరవింపబడతాం. డబ్బులు ఉంటే ఇక్కడికి పరిమితం. ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే వరల్డ్లో ఎక్కడున్నా కానీ మనం రెస్పెక్ట్ పొందుతాం, గౌరవింపబడతాం, అన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి బాగా నిరంతరం చదవాలి, రీడింగ్ చేయాలి, కాంపిటీషన్గా చదువుకోవాలి. ప్రతి క్లాసులో కూడా నాకు నేను బాగా ఎదగాలి, మంచి స్థాయిలో ఉండాలి అని అంటే ఏం కావాలి, ఏమనుకోవాలి చెప్పండి? అన్నాడు గట్టిగా రండి. ఎడ్యుకేషన్. మనం మంచి స్థాయిలో ఉండాలన్నా, బీదరికంలో ఉండాలన్నా అది ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? మన చేతిలోనే ఉన్నది. మన చేతిలో ఉన్నది. మన దరిద్రంలో ఉండాలన్నా, గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలన్నా, కలెక్టర్గా ఉండాలన్నా, ఏది కావాలన్నా అన్నీ మన చేతిలో ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవర్ హ్యాండ్. దట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఒక విపన్, ఒక ఆయుధము. కాబట్టి చక్కగా మీరు చదువుకోవాలి. చదువుకోవాలంటే కొత్త ఇంకోటి ఒకరు ఎవరికి వారు అనుకోవాలి. నేను రోజు బడికి వస్తాను, ఇది ఇంపార్టెంట్ అనండి. రోజు బడికి వస్తాను అనండి, రెగ్యులర్గా వస్తాను. ఇంకోటి రెగ్యులర్గా వచ్చడమే కాకుండా ఇన్ టైం, బిఫోర్ రావాలి. 2 తర్వాత టీచర్ చెప్పినటువంటిది రోజు బాగా రికాలింగ్ చేసుకోవాలి, రోజు రీడ్ చేయాలి. ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మనం ఉన్న స్థాయిలో పోతాము. వీరి యొక్క ఆశయాలు నెరవేరుతాయి, పేరెంట్స్ యొక్క ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. మీ కళ నెరవేరాలంటే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, విద్యార్థులారా కలలు కనండి, సాకారం చేయండి అన్నారు. కాబట్టి మన భవిష్యత్తులో ఏం కావాలన్నా అనేది ఇప్పుడే నిర్ణయించుకోవాలి. బాబు నీవు జీవితంలో లైఫ్లో ఏం కావాలనుకుంటున్నావు? లైఫ్లో క్యావనా డాక్టర్, గట్టిగా చెప్పడగొట్టండి, గట్టిగా చెప్పడం. అట్లా ఒక్కొక్కరు నేను డాక్టర్ అవుతాను, నేను కలెక్టర్ అవుతాను, ఫార్మర్ అవుతాను. ఆ విధంగా జీవితంలో ఒక గోల్ ఉండాలి, ఒక ఎయిమ్ ఉండాలి. ఆ ఎయిమ్తోనే మనం ఇక్కడ రావాలి, చదువుకోవాలి, మనం మంచి స్థాయిలో ఉండాలి. ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు నమస్కారం చేస్తూ ముగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. इसी तरह प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे मोहतरम कमेटी आली जनाब काज़म और सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इंतज़ामी कमेटी जमीयतुल अंसार और नौजवानान महल्ला जलीलपुरा मुनगिर के ज़ेर एहतमाम सेल्फ गवर्नमेंट डे सेलिब्रेशन हर साल की तरह इस साल भी रखा गया। इस मौके पर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा आज के मेहमान खुसूसी मरकज़ी कमेटी के नायब सदर इज़्ज़त माब वाली जनाब मोहम्मद शेख मीरा साहब चौधरी और सदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब चौधरी, नायब सदर कौलास अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा खादरी साहब, पुरुषोत्तम रेड्डी साहब, मुशीर कमेटी कौलास अलहाज अब्दुल मतीन साहब, मोहम्मद उस्मान साहब चौधरी, इस मदरसे के सदर मुदर्रिस मौलाना शहबुर रहमान साहब, मुदर्रिस मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आप सब उस्ताद इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जब से बच्चे अपना प्रोग्राम सुन रहे थे, हम बच्चों की स्पीच माशाल्लाह बहुत ही काबिल तारीफ़ है हमारे उस्ताद इकराम की, जो बच्चों के पीछे खिदमत कर कर ये काबिल बनाया। आज जो आपके उस्ताद आपके लिए दिन तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आपका भी हक़ है कि आप भी एक अच्छे तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम हर इंसान की बुनियादी हक़ है, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो। इसकी पढ़ाई लिखाई लड़की न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे मुआशरे का संवारती है। लड़की एक तालीम याफ्ता हो तो एक अच्छी माँ, बेहतरीन बीवी और ज़िम्मेदार शहरी साबित होती है। तालीम याफ्ता औरत अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत कर सकती है और बाशऊर मुआशरे की बुनियाद रखती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक लड़की पढ़ते हैं तो दरअसल आपकी पूरी कौम की पढ़ाते हैं। तालीम इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, ये हमारी शख्सियत को निखारता है। तालीम हमें अच्छे और बुराई की पहचान रखती है। पढ़ाई लिखाई माशरे में इज़्ज़त मिलती है। तालीम ख़ुद एहतमामी और समझ में इजाफ़ा करती है। यह हमेशा कामयाबी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। तालीम से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। हर बच्चे को तालीम का हक़ मिलना चाहिए। तालीम सिर्फ़ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि तजुर्बात तक भी हासिल कर सकती है। तालीम याफ्ता मुआशरा एक मजबूती कौम की बुनियाद है। इसके साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यकीन करते हैं जो अपनी राह की रहबरी पर हम तरक्की ना जाने कितने सीने चढ़ गए होते, तरक्की के ना जाने कितने सीने चढ़ गए होते अगर हम रोज़ के खाने से लुक़मा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे बढ़ गए होते। अस्सलामु अलैकुम। अभी आप मोहतमद कमेटी इज़्ज़त माँ वाले जनाब मोहम्मद काज़म अहमद साहब से तालीमी मेयार के मुतालिक कि आप तालीम हासिल करेंगे तो आप क्या क्या आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आती है, क्योंकि तालीम ही से इज़्ज़त है, तालीम ही से बुलंदगी है, तालीम ही से मनसब और मरातिब हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए वक्त के तकाज़ा के मुताबिक अब मैं इज़्ज़त माब आली जनाब मेहमान ख़ुसूसी और साबिक़ा सदर और हाल के मरकज़ी नायब सदर जिनसे मेरे मुराद अलहाज मोहम्मद शेख मीरा साहब चिश्ती याक़ूबी दामद बरकातुहुल आलिया से अदबन गुजारिश है कि अपने ख़यालात का इजहार क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया के तलबा और तालिबात के दरमियान फरमाएँ तो एहसान अज़ीम होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जयनशीन पे जो तशरीफ़ फरमा हमारे सदर मोहतरम इकबाल साहब और मोहतमद काज़म साहब, मुशीर कमेटी मतीन साहब, नायब सदर हमारे मुस्तफ़ा साहब, हमारे मौलाना शोबुर रहमान साहब, दस्तगीर साहब, उस्मान साहब और जितने भी यहाँ पर जो कमेटी के मेंबर्स हैं सबको और बच्चों को और जो है ना हमारे असातिज़ा को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी बड़ी मसरत की बात है ख़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया जलीलपुरा में जो आज मुफ्त तालीम दी जा रही है। खिदमत खल्क़ हमारे बुज़ुर्गों ने असलाफ़ ने
इतने मेहनतों के साथ, काविशों के साथ आज इस मदरसे को जारी व सारी फरमाया और क़यामत तक जारी व सारी फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ, जिसने अपने बोला है वाक़ई में तालीम एक ऐसी नज़्म है, एक तालीम ऐसी जो है ना शराफत है। तालीम से दुनिया और दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी होना चाहिए। दीन की तालीम, हम तो दीन से तो वाबस्ता है, हमारा मदरसा ही दीन का है, लेकिन उसमें असरी तालीम को रखा गया इसलिए कि दीन पहले मुक़द्दम है, उसके बाद दुनिया की तालीम तो हम तो ज़रूरी लेना ज़रूरी है। इसलिए कि आज का ज़माना पूरा आशुब ज़माना, दुश्मनाने ज़माना हमको कुछ कमज़ोर रखा है, इसलिए हमारे बच्चों के लिए तालीम का होना लाजमी है। बच्चियाँ और बच्चों को इसलिए ज़रूरी है कि एक तो तालीम से हमारे नस्लों को पुरनूर चढ़ा सकते हैं, हमारे नस्लों को तालीम दे सकते हैं। हम नौकरी करना ज़रूरी नहीं है, हमारे बच्चों को भी ये गुजारिश है कि हम जो है ना नौकरी करना ज़रूरी है, लेकिन कारोबार करें भी तो तालीम से वाबस्ता रखना ज़रूरी है। आज बच्चे हमारे डॉक्टर बन सकते हैं, अपने अज़्म के ऊपर है। बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपने अज़्म को लेकर चलो, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अपने गिरेबान में झाँको, अपने अंदर बहुत सिफतें हैं, अल्लाह ने इतने सिफतें रखा। हमें अज़्म की ज़रूरत है, हमारी तड़प की ज़रूरत है। हम वालिदैन की इज़्ज़त करते हुए हमारे माँ बाप जो है ना, ठीक है माँ बाप को पढ़ाई नहीं आएंगी, लेकिन अपन पढ़ने में तवज्जो लगाओ, इंशाअल्लाह ताला तुम कलेक्टर भी बन सकते हो। आज देखो कैसे कैसे लोग जो है ना आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन रहे। परसों एक तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया, एक गरीब वालिदैन रिक्शा चलाते, ऑटो रिक्शा, उनकी IAS ऑफिसर बने। क्या बात है, वजह क्या है? आपका आज़्म। वो बच्ची ये नहीं बोली कि मेरे माँ बाप जो है ना गरीब है, मैं ऑटो चलाती है मेरे वालिदैन, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपका आज़्म ही आपको लेके चलता है, आपके आज़्म को आपको ऊंचा उड़ाता है। ऐसे कई वाक़ियात है, आप देखिए कई कलेक्टर बने हैं हमारे बच्चियों को बात कर रहा हूँ, तो बच्चे तो दूर की बात है, लड़कियों की बात कर रहा हूँ भाई, मुसलमान लड़कियों की बात कर रहा हूँ। IAS ऑफिसर बने हैं, IPS ऑफिसर बने हैं। इसलिए आप लोग अज़्म लेके चलो, हमारे वालिदैन गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, तुम अज़्म लेके चलो, अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते फरहम करता है। इस कमेटियों को शुक्रगुजार रखो, इनका क्या अज़्म है, इनका क्या मफाद है, बोलो। सिर्फ मफाद क्या है? अल्लाह की रज़ा। इसमें क्या है? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा के लिए यह कमेटी काम कर रही। जैसे क्या मफाद है? हमको बिजनेस नहीं है, हमारे कारोबार नहीं है, हमारे बीवी बच्चे नहीं है। क्यों भाई? आप लोगों के लिए जो है ना जहाँ जहाँ साल होते ही लोगों के पास हमको देख के ऐसा भागते हैं लोग, समझ में नहीं आता कि ये लोग आ गए चंदे खोरा बोल के। किसके वास्ते जा रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं? सोचो, ये मेहनत क्या है मालूम करो। क्यों हम, क्योंकि तुम लोग 1 रुपया फीस नहीं दे रहे, सबको मालूम है, सबको मालूम है, कोई नहीं दे रहे। फ्री तालीम दी जा रही है। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी हमारे पास आया, ऑफिस में बैठा, हमने बोला 7वीं क्लास तक हम इंग्लिश मीडियम मुफ्त तालीम दे रहे हैं। वो तो वाक़ई में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कैसा पढ़ा सकते? कितने तनख्वाह है? 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है साहब। बोले तो ताज्जुब हुआ, कहाँ से आता? तो हर जगह जाते हैं हम लोग, कमेटी के लोग जाते हैं, तो लोग जो है ना अपनी ज़कात अपनी अतियात देते हैं। तो ये लेके आके इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं, इतनी तारीफ करके गया। उन वक्त आया तो बोलो मेरे पास आओ, मैं और एक सलाब डालता हूँ, 10वीं क्लास करो। तो ये हमारा अज़्म है, हम लोग लेके चलने का मकसद ही ये है। हमारे जिंदगियाँ, हम लोग हमारे बच्चों के लिए तरक्की की तरफ ले जाने के लिए ये काविशों का नतीजा है, ये बुजुर्गों के काविशों का नतीजा है। आज हम लोग रहते हैं और आने वाले नस्लें भी हमारे जगह बैठ के करने की ज़रूरत है। तुम लोग पढ़े तो ये सब कर सकते हैं, हम नहीं पढ़े। हमारी तालीम के जब हमको ट्यूशन फीस नहीं मिलती थी, हमको ट्यूशन फीस नहीं दिया जा सकता था, वालिदैन की इतनी कसम पुरसी थी। आज अल्लाह के फजल से तुमको जो है ना इतनी बेहतरीन अंदाज में तालीम दे रहे हैं। वालिदैन को भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ, इन बच्चों को जो है ना अपने वक्त पे भेजे, वक्त की पाबंदी करे। ये जो है ना वो ये नशानियाँ बनाकर शादियाँ बिया बोल के अपने बच्चों को जो है ना स्कूल नहीं लाए, तो आप लोगों के बच्चों की तालीम दूर होती है। तालीम से वाबस्ता करे, बच्चों को सही तरीके से अपने क्लासों को भेजे, तो अपने टीचरों की इज्जत करना सिखाए, अपने उस्तादों की भी आप इज्जत करो। ये एक माँ बाप है, हमारे माँ बाप 3 होते हैं, एक उस्तादनी माँ होती है, उस्ताद और बाप होते हैं, और माँ बाप अपने पालने वाले भी माँ बाप होते हैं, सास ससुराल भी माँ बाप, 3 माँ बाप का दर्जा रखते हैं। आप लोग उस्ताद को बड़ी अच्छे अंदाज में वालिद वालदा समझ के चलो, आपको दुआएं मिलते हैं और आपको तालीम से वाबस्ता करते। वो लोगों की तालीम को अपने दिल में रखते हुए अपने तालीम को घर में जाके अपने जो है ना, अगर नहीं याद आ रहा या खवीयू पढ़ते रहो। हमारे पास हर चीज का इलाज है। अगर अपने दिमाग में या खवीयू या खवीयू या खवीयू पढ़ो, 11 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर तालीम का जज्बा पैदा होता। वक्त रहा और बोलता,
लेकिन क्या करूं, मैंने जो है ना आप लोगों की दुआ से मरकज का जमीयतुल अंसार का मैं नायब सदर बना हुआ हूं, पूरी 11 कमेटियों का नायब सदर बना हुआ हूं। मैं भी इस मदरसे को और कुछ करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब तो आपको मालूम है इसको जो है ना और सहेजेंगे और अपने बच्चों को तालीम से वाबस्ता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको जो है ना कुछ इनकम फोर्सेस करके इनको 8, 9, 10 तक भी इंशाअल्लाह कोशिश करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। जाते जाते छोड़ जाओ अपने कदमों के नखुश। शायर क्या बोल रहा, जाते जाते छोड़ जाओ अपने कदमों के नखुश। अपने कदमों के नखुश के माने क्या है, तुम जब जा रहे हैं अपने लोगों को जो है ना अपना जो छोड़ी हुई चीज़ों, अपने जो लगाए हुए चीज़ों को छोड़ के जाइए, अपन जो करे हुए कामों को छोड़ के अब आने वाले काफिलों के रहनुमा बन जाओगे। अगर हम करके कुछ जाएंगे तो तुम इस्तेफादा होंगे, इस्तेफादा होंगे ना, जरूर पढ़ेंगे ना। हाथ उठाओ, कौन पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेंगे? पूरे लोग आज़म लेके उठो, अल्लाह के वास्ते पढ़ो। हमारा जो है ना जितने भी लोग कमेटी के लोग काम कर रहे हैं इनके लिए जो है ना बाज़ाब्ता जो है ना अपने दिलों में मोहब्बत रख के इनके हक़ में दुआ करो, क्योंकि ये लोग जो है ना अपना वक्त छोड़कर अपना काविशों का नतीजा है ये। इंशाअल्लाह ताला मेरे कभी वक्त रहूँगा तो बोलूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब मैं सदर बावकार इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब चौधरी, सदर कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया और मस्जिद साहबा से अदबन गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और अपने ख़यालात का इजहार कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया के तलबा और तालिबात में फरमाएँ ताकि आपके कलाम आपके ख़यालात से तलबा मुस्तफ़िज़ हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बच्चों को और हमारे जो भी साथी हैं उन सब के लिए मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि आज हमारे ऑल इंडिया जमातुल अंसार के नायब सदर चीफ गेस्ट आना हमारे लिए शेख मीरा साहब खुशखबरी है, हमारे लिए, हमारी कमेटी के लिए, हमारी हिम्मत के लिए सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। और दूसरी बात, आज जो है सो आपको मालूम है मुस्लिम टीचर, सबसे पहले मुस्लिम टीचर रज़िया बेगम, मालूम होगा आपको, सबसे पहले मुसलमानों में टीचर जो बने उनका नाम रज़िया बेगम है। वो उनका आज यौम पैदाइश का दिन है। आज खुशकिस्मती हम आज के वो दिन भी मना ले रहे हैं इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग को तो ये लोग सब हिदायत दिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी इनकी हिदायत पे सुने। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैं हमेशा जो सो यही की बात समझा रहा था तुम लोगों को कि उसमें 80% आप लोग सुधरे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप कम ओनली 7th क्लास है फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सक रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अभी तक मैं 1 साल से आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, हो सकता है टीचरों के साथ आपके साथ मेरे पर थोड़ा गुस्सा होगा, लेकिन इतना तो है कि अब देख के पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। पहले हर आदमी देख के पढ़ने की कोशिश करता था, अब तुम लोग खुद छोड़ दिए देख के पढ़ना, बोल सक रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करना। और मैं टीचरों से बोल रहा हूँ, जो भी आप देख के पढ़ने वालों को स्टेज पे नहीं लाना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट चले जा रहा, वो क्या है चलो देख के पढ़ने वाल गया। आप लोग कंट्रोल करें, आपकी मेहनत है। आज 80% बच्चे बगैर दिए इंग्लिश में बात करें, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं बोल रहा आपको ये कंडीशन चल रहा, मैं आया तो हमेशा बोल रहा हूँ, जलसों में उल्सों में सबको बोल रहा हूँ। आज लोग तुम लोग आपकी मेहनत आप करने का देना, मेहनत का कैसा मेहनत करो सब बोलते, कैसा मेहनत करना बता दिए। अब और भूषण साहब भी बता दिए, टाइम पे आना, कोई दिमाग से कम कोई दिमाग से ज़्यादा नहीं होता, अल्लाह ताला सबको ही दिमाग दिया, लेकिन यूज़ करने का तरीका आना, हम कैसा यूज़ करें। अब देखते हम लोग आते बच्चे पढ़ लेते, थोड़े बच्चे अटेंडेंस नहीं होता उनका, कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं है, क्या करेंगे टीचर, पहली बात। दूसरी बात, आप आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, चलो स्कूल जाए, घर को गए, बैग फेंक दिए, फिर नहीं देखते, फिर कल सुबह ही देखते, तो वैसे बच्चे रहते, वैसे बच्चे कोई कुछ नहीं कर सकते, टीचर भी कुछ नहीं कर सकते, कमेटी कुछ नहीं कर सकती।
आप लोग ये करना कि थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़े बच्चों को दिल में रहता अरे वहाँ पढ़ के फिर यहाँ पढ़ना क्या होगा। अरे हमारा काम ही बचपन में पढ़ना है, पढ़े सुने आगे बढ़ते, नहीं पढ़े सुने फिर पीछे रह जाते। और एक बात, नौकरी कोई मेन चीज नहीं है, पढ़े सुन नौकरी करना ही बोल के नहीं है। सुने तुम्हारे बोलो बड़े बड़े लोग तो आपको जितना मालूम, इंदिरा गांधी है बहुत पढ़ी क्या नौकरी करे हो ना, नौकरी करने से आप पॉलिटिक्स में आ सकते, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते अपना घर अच्छा चला सकते, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले सकते। सुने तो पढ़ाई जो सो ऐसी चीज है, चोरी नहीं होती आपकी पढ़ाई। आपके पास सोना चोरी होगा, आपके पास जेवरात चोरी होंगे और कोई दूसरी चोरी होंगी। सोना कोई तो आप बिल्डिंग में रहो, आप इसमें रहो, आप पढ़े लिखे हैं बोले तो आपको अरे से नहीं बात कर, आपसे बात करते, अजी से बात करते, अरे बच्ची पढ़ी लिखी है बोले। तो हम ये तमीज सीखते भी सिखाते भी, ये ऐसी चीज है पढ़ी। सुने इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी जो हो सो स्ट्रिक्टली बराबर आना स्कूल को बराबर। सबसे ज्यादा टीचरों की शिकायत मेरे पास ये है कि आपके बच्चे इस घरों में पढ़ते नहीं। कई बच्चे तो होमवर्क नहीं करते, कई बच्चे तो जो है बराबर अटेंडेंस नहीं है। अब हम ये कोशिश करना चाह रहा हूँ, मैं एक और एक नया रूल रखना चाह रहा हूँ हमारे के साथ, अटेंडेंस भी 3 महीने में एक अटेंडेंस रिपोर्ट देना। जैसा अपन स्कूल रिपोर्ट देते 3 महीने के बाद अपॉइंट देना, देने के बाद वो बच्चा 3 महीने में हम मिनिमम जितना हम सोचेंगे उतना अटेंडेंस आए तो बच्चे में रखेंगे। तो हम भी जो है तो दूसरे बच्चों को खराब करना सिस्टम नहीं है हमारा, सब मिलके अच्छा काम करेंगे हमारा। ऐसा ये खाली लोग भी पूछेंगे हमारे को, लोग तो क्या देने वाला दे देंगे, लेकिन कल अल्लाह ताला हमको क़यामत में पूछेंगे आप लाए पैसा क्या करें। चलो यहाँ के लोग कुछ बोलो वो परवाह नहीं है, लेकिन हम क़यामत में पकड़े जाएंगे बेटा। वो सोच के हमको काम करना है, हम रात दिन काम लगे हुए हैं, बोलते उसका वजह ये है कि पैसा तो कमा लेंगे लेकिन बच्चों को कैसा हम ये करेंगे। पैसा तो ला लेंगे कहाँ से भी, बना लेंगे घरा बिल्डिंग सब, मदरसे मस्जिद बनाना बड़ा काम नहीं है, बच्चों को बनाना अखलाक बनाना वो हमारा बड़ा काम है। क्योंकि एक माँ या एक बीबी एक बच्ची कोई भी पढ़ी लिखी हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उनके खुद थे अल्फाज के, वो घर नेक होगा। आप नेक होना है तो पढ़ना जरूरी है। यही हमारी सबकी ये है, कोशिश करेंगे। हर चीज़ आते रहते हैं, महले चलते रहते हैं, हमारा काम हम करते जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब तो बोलो ना हमारे इनका भी साथ है, अब अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे, हर चीज़ रखेंगे। 1 साल का रिपोर्ट में हम क्या क्या देंगे, क्या क्या करेंगे, नए नए चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। ट्रेनिंग सेंटर्स रखेंगे आपके लिए, ब्यूटी पार्लर का ये रखेंगे आपके लिए। आप जो सीखते बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे अरेंज करेंगे। आप भुवनगिर में हर बच्ची खाली नहीं होना, इस स्कूल में पढ़ने वाली हर बच्ची एक एक ट्रेनिंग में फर्स्ट क्लास आके रहना। इंशाल्लाह वो हमारा नज़म है, इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। सिर्फ आप लोग का मेहनत करना है, आप लोग मेहनत करो, हम लेके चलेंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आपको मालूम है गवर्नमेंट से खाना बंद हो गया, कोई परवाह नहीं है, हम कोई सा भी छोटा मीठा कम शरत चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट से आना जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक ऐसी चीज़ बना के गए तो हर आदमी, हमको गवर्नमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सुने हर मुसलमान, हर पैसे वाला, हर गरीब आदमी कुछ ना कुछ, मैं बच्चों के लिए मदरसे के लिए ज़कात नहीं निकलती तो हदिया नहीं निकलती तो कुछ फितरा देने के तैयार है हम। इसलिए सिर्फ हमारी मेहनत की ज़रूरत है। बचपन में ये आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। इससे मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, शुक्रिया। अब प्रोग्राम अख्ताम पे है इंशाअल्लाह। क्या दे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहेगा। जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उसमें यहाँ तो क्या बोलते पार्टिसिपेशन प्राइजेस देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं हमारे ओहदेदार जो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है वो लोग को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले सुमैया बेगम जिन्होंने आज कलेक्टर बना है, जो हमारे मेहमान खुसूसी है अलहाज शेख मिराज साहब नायब सदर से गुजारिश करता हूँ कि आज के कलेक्टर साहबा को क्या बोलते गिफ्ट दे, ठीक है। इसके बाद अब्दुल हई साहब जिन्होंने आज डीओ बना है, उनका पार्टिसिपेशन प्राइज है।
अब इसके बाद आज के एमईओ मदीहा कौसर अपने गिफ्ट हासिल करें। आज के मरकज़ी कमेटी के प्रेसिडेंट रेहान अहमद के से गुजारिश करते कि अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के ट्रेजरर बशीरुद्दीन साहब जो अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के सेक्रेटरी साहब हुसैन अपना गिफ्ट हासिल करें। हाँ, आज के स्कूल इंचार्ज अयानुद्दीन अपना गिफ्ट हासिल करें। फरहान आज के कुरान टीचर हैं, गिफ्ट हासिल करें। ये क्या है? अनस आज के उर्दू टीचर अनस अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के उर्दू टीचर तेलुगु टीचर तनवीर अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के मैथ्स टीचर मीरन अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के हिंदी टीचर सना सनोवर अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के इंग्लिश टीचर खिजरा उन्निसा अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के EVS टीचर निधात फातिमा। आज के साइंस एंड सोशल टीचर सफूरा अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के टीचर राइम्स तेलुगु क्या है? मेहरीन फातिमा। अपना गिफ्ट हासिल करें। आज के इंग्लिश टीचर शाफिया आफरीन अपना गिफ्ट हासिल करें। ताफिया तस्कीन अपना गिफ्ट हासिल करें, इंग्लिश टीचर। सादिया आज के PT टीचर अपना गिफ्ट हासिल करें। फारिया अपना गिफ्ट हासिल करें। पर्सनल असिस्टेंट कलेक्टर अपना गिफ्ट हासिल करें। इसके बाद अल्फिया बेगम इंग्लिश टीचर अपना गिफ्ट हासिल करें। अलीशा जो आज के हिंदी टीचर है अपना गिफ्ट हासिल करें।
नाफिया जो है मैथ्स टीचर अपना गिफ्ट हासिल करें। अस्मा बेगम EVS टीचर अपना गिफ्ट हासिल करें। इसके बाद अजीज़ा मीरन माहिन अपना गिफ्ट हासिल करें, साइंस टीचर है। चलो जल्दी जल्दी आओ बेटा। नूरजहां बेगम जो तेलुगु टीचर है अपना गिफ्ट हासिल करें। इसके बाद रिदा अरहान रिदा अर्शीन अपना गिफ्ट हासिल करें, इंग्लिश टीचर। दो हाथों से पकड़ो। जोया बेगम जो है मैथ्स टीचर अपना गिफ्ट हासिल करें। फाइनल होगा। अब खत्म होगा। हाँ ऑफिस में इंशाल्लाह। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेट किए और हमारे पुरुषोत्तम रेड्डी साहब जो फोटो ले ली। हाँ फोटोस। इसके बाद स्नैक्स का भी इंतज़ाम है कि अहदेदार और स्टाफ और आज के जो भी स्टाफ बने हैं